Hello friends, today we'll do unit 3 of block number 4 of social psychology. It is about social identity, crowding and crowd behavior. So let's start. Uh, in the previous chapters we had talked about group and group behavior and how does people in a group achieve their ends, what are the reasons that people form groups, and how basically they come to form a platform where they can work together to achieve a common goal, right? So next we are going to talk about social identity and crowding. So friends, first of all, what is social identity? So social identity uh, is conceptualized when we talk about self. So what is self? Self is basically what you are, what are your actions, what are your thoughts, what are your belief systems, okay, and what do you think about yourself, okay. So we have a self, that is we ourselves, and we have a self identity, that is what people think about us, what we think about ourselves, okay. So it is basically your thought about yourself and how you evaluate yourself, okay. So that is your self concept, your conceptualization of your own self, and the way you evaluate yourself is your self concept. How do you perceive yourself uh, to be in front of the whole world, and how the whole world perceives you is your social identity. Okay. So also friends, please understand self concept will include all the informations and feelings that are relevant to both our past and future self, okay. Also it talks about how we process information about the social world around us, uh, like let's say our motives, emotions, our abilities, the way we evaluate ourselves, etc. Okay. Now, social identity theory explains how people, they develop a we feeling or a sense of membership and belongingness to a particular group. Okay. Now, there are many interconnected mechanisms. Okay, people are interconnected with each other, and they join groups to affirm their self-esteem. Let's say, for example, they have a self-esteem or they feel good about themselves. तो उनको लगता है कि अगर मुझे अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है और मैं ग्रुप में पार्ट लेता हूँ, तो मैं भी ग्रुप को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और इससे मेरी सेल्फ एस्टीम में और ज्यादा एनहेंसमेंट होगी. So that is the reason people also join groups, so that their self-esteem will not only be affirmed but it will also be enhanced. Okay. Then social identity की जो theory दी गई थी, that was by um, two persons known as Tajfel and Turner. Okay, in 1979. तो वो ये बोलते हैं कि आपका मल्टीपल सोशल आइडेंटिटी हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट playing one role in the society. You are not just, let's say, a lawyer. You are not just a teacher. You are not just a doctor. But also you can be member of, let's say, uh, you closely follow what goes on in the LGBT community. So you are a member, let's say, of that community, or you are somebody who advocates it. तो आपका उस तरह से एक सोशल आइडेंटिटी हुआ. यू आर समबडी हु टॉक्स अबाउट एंटी डाउरी मूवमेंट, सो आप उस तरह से भी यू हैव अ सोशल आइडेंटिटी. सो यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन द सोसाइटी, और आपके पास मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज है. ओके. फिर वो बोलते हैं कि एक इन ग्रुप फेवरेटिज्म भी होता है. व्हाट इज इन ग्रुप फेवरेटिज्म? इन ग्रुप फेवरेटिज्म मींस आप जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आप उसके प्रति थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होते हैं, उसको ज्यादा पसंद करते हैं. ओके. So he says, Darjal and Turner says, three variables have contribution to in-group favoritism. One is the extent to which individuals identify with their groups, okay, and the way they can relate to that group. That is one variable. Second, um, the extent to which जो भी context है, that gives us some reason for comparison between groups, okay. And the third is ग्रुप के स्टेटस को हम किस तरह से देखते हैं, उसके रेलेवेंस को हम किस तरह से देखते हैं. सो दैट आल्सो is a variable that has contribution to the in group favoritism. Okay. Now ये जो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ऑन सोशल साइकोलॉजी. ओके.
And इसका impact जो है, it is on prejudice, it is on stereotyping, it is on, you know, let's say negotiation and language, etc. Prejudice or stereotype क्या है friends? We'll be studying it in later chapters, okay? But just understand prejudice and stereotypes are thoughts that prevail in the society, and you being as a part of the society, you also uh, tend to have these thoughts, okay, these thought processes in you. Okay, so now um, besides this, social identity जो है, it is generally composed of four things. One is categorization, identification, comparison and psychological distinctiveness. So categorization is आप कैसे लोगों को या अपने सराउंडिंग को कैटेगराइज करते हैं इन ग्रुप्स. आइडेंटिफिकेशन, आप किस ग्रुप के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं. कंपैरिजन, आप अगर मान लीजिए एक ही टाइम में दो तीन ग्रुप्स के मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए यू आर अ ग्रुप ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, you are a group of association of clinical psychologists and counselors, and let's say you are a member of group for psychology students. Now आप compare करते हैं which group is more active, which group has more to offer, और फिर आप उस ग्रुप के साथ रहते हैं and you contribute more to that group. ठीक है friends? So these are the this is known as comparison. Then last is psychological distinctiveness. आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं विच ग्रुप इज वर्किंग फॉर विच एम, कितने अच्छे से वो काम कर रहा है, वो कितना डिस्टिंक्ट है दूसरे ग्रुप से, राइट? सो दैट इज साइकोलॉजिकल डिस्टिंक्टिवनेस. देन इसके बाद सोशल आइडेंटिटी जो है, देयर इज अ मेंबरशिप एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल with other human beings as well, and that is sort of a primary association, okay? Yes. Now after this, after social identity, एक बार social identity हो जाए, group हो जाए, next we come to certain differences between crowd, between mass, between mob. ठीक है? So now we are going to see those aspects. So what is a crowd, friends? A crowd is actually जहाँ physically एक जगह पे बहुत सारे लोग आके एक जगह पे एकत्रित होते हैं, या you can say there's a congregation of individuals, and उनका एक डायरेक्ट, टेम्पररी और अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्टैक्ट होता है. मतलब एक साथ आके खड़े होते हैं तो डायरेक्टली एक ही जगह पे वो कर रहे हैं. एंड सेकंड इज टेम्पररी, ये बहुत देर तक नहीं रुकता. एंड थर्ड इज इट इज अनऑर्गेनाइज्ड. इन लोगों, दोज पीपल हैव नॉट डिसाइडेड दैट यस वी विल मीट एट दिस प्लेस, ओके? तो मान लीजिए कॉन्सर्ट हो रहा है एंड देयर आर सो मेनी, एंड यू नो समबडी सिंगिंग, और जैसे समबडी सिंगिंग इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट. बहुत बार आप यूट्यूब वगैरह में भी देखते होंगे, people who are into vlogging etc, and then suddenly लोग जमा होते जाते. That's a crowd. They had no intention in the morning that I will wake up in the morning and there will be, you know, some show in the middle of the road, I'll go and stand. नहीं, they might be crossing that time, और तभी उन्होंने सुना कि, और या देखा कि 10-12 लोग खड़े हैं. The curiosity, you know, उनको बोलती है कि ठीक है आप भी जाके देखो क्या हो रहा है. So crowd is basically direct, it is temporary, and it is organized contact with one another, okay? Also बहुत कम टाइम के लिए वो लोग खड़े थे. once the event or the situation is over, they will disperse. और ये बहुत you can say ये ट्रांजिटरी होता है, और स्टेबल नहीं होता, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ओके? सॉर्ट ऑफ एन अनस्टेबल थिंग, बिकॉज कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जुड़ रहा है, कोई वापस, अगर मान लीजिए singing continues for 4-5 hours, nobody is going to stand for 4-5 hours, but maybe people will stand for 30 minutes, or let's say max 1 hour. They'll move, then somebody else will come. So it's not very stable, okay? Now crowd का जो behavior होता है friends, that has three aspects. One is psychological continuity, one is polarization of interest and attention, and one is transition of temporary character. तो friends यहाँ पे psychological continuity मतलब जितने लोग भी क्राउड में खड़े होते हैं, they feel they are psychologically similar at that point in time to certain thing. अगर कोई गा रहा है और लोग वहाँ पे खड़े हैं, they have a psychological continuity that we all love this song, we all love this person singing, we all love this environment or surrounding, ठीक है? So that is a psychological continuity. Second is polarization of interest and attention. All those people who entered and who stood there for some time, they were on one end who are saying that yes, we like it and we would want to stand here. All those people who stood there for some time and who are leaving,
they are saying that yes, we are leaving now because we have other works to do. So you see, बहुत सारे ऐसे लोग हैं in that crowd who share a similar interest, okay, and they have a similar kind of attention span. So that is polarization of interest and attention. And last is transition and temporary character. That I told you friends, it's unstable. बहुत देर तक crowd में कहीं नहीं होता, वो disperse हो जाता है. And transition, it again changes. Crowd से कभी वो mob भी बन सकता है. So it has a very unpredictable nature. Okay. और crowd जो होता है, it is basically because of some curiosity, interest or other temporary causes, और वो dissolve हो जाएगा the moment the cause vanishes. Now friends, there are two types of crowd basically. One is active and one is inactive. तो जो active crowd होता है, उसके फिर कुछ सब टाइप्स हैं. दे आर एग्रेसिव क्राउड. तो एग्रेसिव क्राउड क्या है? वैसे क्राउड जो कि डिस्ट्रक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड के होते हैं और कुछ भी डिस्ट्रक्शन या इरेशनल बिहेवियर करते हैं, ब्रूटलिटी करते हैं, इनह्यूमैनिटी दिखाते हैं और ट्रिमेंडस एक्साइटमेंट होता है उनका. तो कभी कभी वो कुछ तोड़ देंगे, ये करेंगे. इट इज वेरी मच सिमिलर टू मॉब थिंग, बट मॉब में इट इज जस्ट लाइक अ मॉब. बस मॉब और एग्रेसिव क्राउड में सिर्फ इतना फर्क है दैट मॉब में दे आर नॉट कलेक्टेड. मतलब कोई ऐसा सोच के नहीं आ रहा है, कोई अपने घर से निकल रहा है, कहीं से निकल रहा है, एंड देन सडनली दे कम एंड मर्ज. क्राउड में they were organized in the first place और suddenly they become aggressive. ठीक है? So that is aggressive crowd. What is panicky crowd? Panicky crowd में सब यहाँ बहुत डरे हुए होते हैं, तो कुछ पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है. They don't know what is the solution. जैसे मान लीजिए some people who are held hostage at a place, वो लोग सब एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं. It is कुछ भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ और तरीके कर रहे हैं. So that is like they are very बहुत डरे हुए हैं. So that is a panicky crowd. They want to save their lives. Then कभी या फिर कहीं पे रॉबरी हो रहा है या कुछ हो रहा है, कहीं कुछ घर जल गया किसी का, etc. Then third is acquisitive crowd. तो acquisitive crowd का मेन मकसद क्या है? They want to acquire something. Okay. तो अगर मान लीजिए बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे फ्लड हो या नेचुरल कैलामिटी हो, तो जब रिलीफ जाता है तो बहुत लोग झगड़ा करके वो रिलीफ लेना चाहते हैं. So that crowd is wanting to acquire something. So that is an acquisitive crowd. Fourth is expressive crowd. तो इनका कुछ वायलेंस वगैरह कुछ इनका मेन मोटो नहीं है. इनका मोटो है टू एक्सप्रेस और वेंट आउट देयर फीलिंग्स. ओके. तो दैट इज एन एक्सप्रेसिव क्राउड. नाउ व्हाट इज इनएक्टिव क्राउड फ्रेंड्स? ऐसे तो कोई भी क्राउड इन शॉर्ट इनएक्टिव नहीं होता, बिकॉज एवरी क्राउड सर्व्स द some purpose at least. लेकिन they are not as direct or active as the first type. Okay. So यहाँ पे वैसे लोग होते हैं जिनका कोई प्री डिटर्मिन्ड एम नहीं होता, कोई टाइम एंड प्लेस नहीं होता शेड्यूल किया हुआ पहले, एंड बस अभी टेम्पोररी कुछ समय पहले उनको पता चला हुआ कि उनका कॉमन इंटरेस्ट है, या फिर इमोशन से मोटिवेटेड होते हैं ये लोग. इनका कुछ बिहेवियर भी सर्टेन नहीं होता, एंड basically they're very unorganized, very disordered. Okay. And their curiosity, values and emotions are temporarily identical because of a common interest. तो यहाँ पे जो लोग क्राउड में रहते हैं, they lose their individual self control and may engage in different types of activities. Okay. तो जो और हाँ, यहाँ पे और एक चीज भी है फ्रेंड्स. क्राउड बिहेवियर जो होता है, बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स इसके पीछे वर्क करते हैं. One is anonymity, contagion and suggestibility. We'll be looking at those qualities, mechanisms. Okay. Now आपको पता है Dollard had given the frustration aggression hypothesis which we had talked in the previous classes. So यहाँ पे crowd में भी एक frustration aggression चलता रहता है. If they are trying to achieve something और वो achieve नहीं कर पाते, they get frustrated and that manifests into the aggressive behavior. तो okay. Now एक क्राउड बिहेवियर को टर्नर ने और एक तरह से भी बताया है अबाउट एमर्जेंट नॉर्म्स, जहाँ की लोगों का जो भी, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सो दोज फीलिंग्स एंड इमोशंस आर स्प्रेड. एंड ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी या जो लोग ग्रेगरियस हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है. एंड पीपल ट्राई टू बिहेव कलेक्टिवली जैसे वो एक ग्रुप में बिहेव करेंगे. ओके.
देन फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव क्राउड साइकोलॉजी. तो बेसिकली क्राउड साइकोलॉजी में क्या होता है, क्राउड साइकोलॉजी में एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है. मतलब लोग इंडिविजुअली जो नहीं कर सकते हैं ड्यू टू फियर, ड्यू टू शेम, ड्यू टू इनएबिलिटी और व्हाटएवर, वो लोग एक साथ में आकर वो एक ऐसे टाइम पे कर लेते हैं जहाँ पे दे कैन अचीव देयर कॉमन इंटरेस्ट. ओके, तो इसके लिए फिर बहुत सारा थ्योरीज भी दिया गया है, वी विल स्टडी. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज क्राउड बिहेवियर. तो क्राउड बिहेवियर में बेसिकली व्हाट डू वी सी दैट देयर इज लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी. पीपल फॉर्म ग्रुप कॉन्शियसनेस, उनका एक फ्यूजन होता है फ्रॉम आइडिया टू आइडिया, माइंड टू माइंड. एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन होता है ऑन इमोशनल लेवल. अपील्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं. दूसरी, उनकी जितने भी रिप्रेस्ड ड्राइव्स, डिजायर्स जो भी थे वो वेंट आउट होता है. ओके, तो जो सजेस्टेबिलिटी है या लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस है या ईगोइस्ट एक्सपेंशन है, ये सब हमको देखने को मिलता है क्राउड में. तो लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं क्या करना है. अगर किसी एक लीडर ने बोल दिया चलो यार ये थोड़ फोड़ करो इसको, नो, जब स्ट्राइक्स होते हैं भारत वन टाइम में आप देखते होंगे, इसको आग लगा दो, ये कर दो, तो पीपल डू इट. ओके, बिकॉज उनका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, दैट हैज बीन लॉस्ट. ऑल्सो उनके जितने भी इम्पल्सेस हैं, जो जितना वो उन्होंने आज तक गुस्सा भर के रखा था यू नो अबाउट समवन और या अबाउट सम कॉज, अबाउट सम इवेंट, ये भी एक तरह से मैनिफेस्ट होता है एंड ये कहीं ना कहीं उसकी ओपनिंग होती है, वेंट आउट होता है. एंड लास्ट इज बहुत सारे दूसरे सोशल फेनोमेना पे भी ये क्राउड बिहेवियर लाइट डालता है कि व्हाई सम पीपल रिवोल्ट आफ्टर मेनी इयर्स. व्हेन डू एक्चुअली पीपल रिवोल्ट? सो पीपल रिवोल्ट जब उनके पास और कंट्रोल करने के लिए और कुछ नहीं होता. दे बहुत ज्यादा यू नो दे गेट वेरी 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 एंग्री, लेवल ऑफ टॉलरेंस पार हो जाता है, राइट? So that is they put bring into light other social phenomena. Then friends, there are some theories of crowd behavior. So what are the theories of crowd behavior, friends? First is the classical theory. तो classical theory में first thing is that जो हमारा collective mind होता है, here collective mind is thinking and thought process of all the people who are there in the crowd. Okay, तो collective mind thinks in its own way और अपना खुद की ideas और thoughts को वो formulate करते हैं, लेकिन individual mind ये नहीं कर पाते. तो जब लोग एक साथ मिल जाते हैं, दे आर यूनाइटेड एंड दे गेट अ पावर ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो वो सोचते हैं कि अगर हम ये इंडिविजुअली करेंगे तो वी विल फेस रेजिस्टेंस, लोग हमको मना करेंगे. लेकिन अगर हम ये क्राउड में करेंगे, हमारी यूनिटी देख के लोग हमको कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो वी शुड डू इट. ओके, तो इसीलिए कभी कभी वो बहुत छोटे लेवल का भी बिहेवियर कर लेते हैं जो कि इंडिविजुअली शायद वो नहीं करते. ओके, सो दिस इज द क्लासिकल थ्योरी. देन फ्रेंड्स वी कम टू कन्वर्जेंस थ्योरी. तो कन्वर्जेंस थ्योरी में क्या है? इट इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू क्लासिकल थ्योरी. यहाँ वो बोल रहे हैं कि जो बिहेवियर हम लोग दिखाते हैं उसको कहीं पे भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो एक इंसान का बिहेवियर है. इट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ ऑल द पीपल. सो according to convergence theory, people who wish to act in a certain way come together to form crowds. तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी में ऑलरेडी क्राउड है और वहां से लोग यू नो लीड करते हुए कुछ एक्टिविटीज करें. कन्वर्जेंस में लोगों को पता है कि हमारे मन में ये है बट हम इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, तो लेट अस ऑल कन्वर्ज टुगेदर, कम टुगेदर, फॉर्म अ क्राउड एंड देन डू इट. ओके, तो अगर मतलब अगर मैं चाहूँ ये करना, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो व्हाई नॉट आई come together with these group of people and then I try to bring forward something जो मैं अकेले नहीं कर पाती. Okay, so classical theory में और convergence theory में बस इतना फर्क है फ्रेंड्स. classical theories में people are already in the crowd and then they वहां से उनका एक generate होता है how to give give an end to whatever they have thought. Convergence में they are normally or they are at that point of time normally they are separated individuals. They come together in a convergence and then वो लोग अपना जो भी सोचे हैं उस काम को अंजाम देते हैं. Okay. Then is group mind theory. So group mind theory is again just a little bit of elaboration of whatever we did. So group mind theory has been advocated by many psychologists at many point in time, by Lebon, by
Espinus, by Trotter, by Durkheim, by McDougall, by Alport. Okay, so many people have talked about it. So ये लोग क्या बोलते हैं, again the individual जो crowd में होता है, he loses his individuality and he becomes a part of the crowd, और उस crowd का एक consciousness है, crowd की एक mentality और crowd की एक emotionality हो जाती है, and people tend to follow it. Okay, तो अगर हम देखेंगे वहाँ पे emotion, slogan, appeal, suggestion सब कुछ चलता है, और people जो है वो बहुत इरेशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे तो हिप्नोटिक तरीके से काम करते हैं या फिर अनअपोलोजेटिक तरीके से काम करते हैं, एंड सेंटिमेंट और आइडिया जो लोगों के हैं वो सब एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, तो लोगों को कभी भी गिल्टी नहीं फील होता, बिकॉज पीपल थिंक यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्राउड कर रही है, आई एम नॉट डूइंग इट, द एंटायर क्राउड इज डूइंग इट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ग्रुप माइंड थ्योरी. अगेन यहाँ पे जो इंडिविजुअल के जो मोटिव्स हैं और अनकॉन्शियस चीजें हैं, दे आर ऑल हिडन इन द मोटिव्स ऑफ द क्राउड इटसेल्फ, तो इंडिविजुअल पॉइंट आउट नहीं हो पाता है. ओके, तो अभी आप देखो कि जो हमारे जो लेबन है, was one of the theorists, he tells that individual is influenced by the unconscious motives and his own conscious motivation जो होता है, that sinks into the background, so he follows what the crowd is doing. Espinus is saying कि ये एक social consciousness की तरह हो जाता है, और लोग सबकी consciousness को मिला के collective consciousness बन जाता है and people follow it. बाकी ट्रॉटर इज सेइंग कि मैन जो है वो बेसिकली एक सोशल एनिमल है और वो ग्रेगरियस नेचर का है, तो जब वो देखता है कि मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो जो कर रहे हैं मुझे भी वही करना चाहिए, बिकॉज मैं उनके साथ ही रहता हूँ या आगे भी उनके साथ ही रहूंगा, या फिर आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो वो करता है, राइट. देन Durkheim says that there is a mutual exchange of ideas and notions. Okay, तो अगर मैं अकेले रहती तो मे बी आई वुड नॉट गेट एनीबडी विथ whom I would share these ideas or notions. But since I stay in a group or I stay in a crowd, so I can exchange and I can get to know something or do something more. So why not do it? Okay, so this is how Durkheim has put this across. Then McDougall says that group mind, मतलब group mind का मतलब the mind of the entire group. It has the power to influence the mind of the individuals. Okay, so that is how it does, and people get to do something which they would not have done individually. Then according to Alport, social facilitation and interstimulation, ये दोनों चीज हैं which makes a person do the task which would have not done individually. Okay, what is social facilitation? दूसरे लोगों को देखकर बेसिकली हम भी काम करते हैं. ओके, दैट इज वन. एंड इंटरस्टिमुलेशन इज आपसी में, आप आपस में जब एक दूसरे से बात करते हो और आप सुनते हो कि आपके साथ बुरा हुआ तो दूसरे के साथ भी बुरा हुआ, राइट. तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ भी बुरा हुआ है, इसके साथ भी बुरा हुआ है, तो मतलब ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा ओप्रेसिव है एंड वी मस्ट कम अगेंस्ट इट, राइट. सो दिस इज व्हाट इज इंटरस्टिमुलेशन. ओके, एक दूसरे की बात सुन के भी आपको गुस्सा आता है, एक दूसरे की बात सुनकर भी आपको लगता है वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट. ठीक है, लेकिन देयर इज वन मोर थिंग जो कि क्राउड में हमको देखने को मिलता है, दैट इज क्राउड में जितने भी डिफरेंसेस हैं ऑफ हाई स्टेट, लो स्टेटस, रिच पुअर, या फिर ऑफ डिफरेंट रिलीजन का सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाता है, और क्राउड बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है. हम बचपन से देखते आते हैं टीवी में या सामने कि क्राउड ऐसे बिहेव करता है, तो हम भी वही चीज सीखते हैं. ओके, क्राउड में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम ही खत्म हो जाती है, जस्ट लाइक बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट, और सब किसी को ऐसे लगता है कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं. We as an individual are not going to take any responsibility or blame. It is the crowd that is going to take both the responsibility and blame, and it is the crowd that is asking us to do certain things. Okay, so this was the group mind theory. Last May they have given a small difference. Okay, what is the difference between public and crowd? So friends, as you know, public is basically collection of people, and they are very not very, but they're generally organized. But crowd में
people are not organized. Also, crowd mein there will be some physical contact, or there will be people who are standing close, but public is very scattered. You cannot say that, you know, जब हम बोलते हैं कि this is for the welfare of the public, we cannot point out which one, okay, because they're very scattered. लेकिन हम अगर बोलेंगे this crowd will benefit, so we can point at a time and place, okay. Second, public is a much bigger group than crowd, and क्राउड में जो स्टिमुलेशन मिलता है या फिर जो स्टिमुलस होता है, दैट इज वेरी डायरेक्ट और साइमल्टेनियस. लोगों को आप अगर लोगों को आप कुछ नेगेटिव दे रहे हो, देन क्राउड विल आल्सो रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे, सो इट्स वेरी डायरेक्ट. लेकिन पब्लिक में इट इज नॉट डायरेक्ट, इट्स वेरी डिफ्यूज्ड. कभी उनके पास स्टिमुलस पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड क्राउड. ऑल्सो क्राउड पब्लिक से ज्यादा सजेस्टेबल है. क्राउड जो चाहता है वो जल्दी कर लेता है. क्राउड में ज्यादा सजेशंस भी मिलते हैं, तो क्राउड इज मोर सजेस्टेबल देन द पब्लिक. Then next, friends, we come to collective behavior. So what is collective behavior? When two or more persons behave in the same way, it is collective behavior. And आप किसी religious congregation या फिर कोई festival, किसी को भी आप collective behavior बोल सकते हैं. Now social unrest जो होता है वो एक cause भी है और effect भी है collective behavior का. And कभी-कभी this also leads to emergence of new norms and generally accepted policies, okay. और जो agitated crowds हैं, that they can also develop into disciplined association sometimes, okay. Now collective behavior तो flexible होता है, and कुछ features भी हैं उसके. Number one, it takes place in occasional episodes, okay. मतलब वो हमेशा regular या routine नहीं होता, it takes place occasionally. एंड एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत वो फॉलो नहीं करता या रेगुलेट नहीं होता. ऑल्सो इट इज जनरली गाइडेड बाय इररेशनल बिलीव्स, होप्स, फियर, हेट्रेड, एंड इट इज अनप्रिडिक्टेबल, ओके. हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कलेक्टिव बिहेवियर जो होता है वो एक रेगुलर रूटीन में एक ब्रेक ले आता है, एंड इट इज एन एजेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सोशल मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस, ओके. कभी कभी this also shows very loose organized behavior, okay. Also friends, you can understand this कि crowd जो है that may include mob behavior as well as audience behavior. So let us just understand this. तो अब आप ऐसे सोचो कि casual crowd है. अभी दो तरह के crowds हैं. Crowd again is like a casual crowd and conventional crowd. तो कैजुअल क्राउड क्या है? अभी एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा लोग आके जमा हो गए, दैट इज कैजुअल क्राउड. व्हाट इज कन्वेंशनल क्राउड फ्रेंड्स? कन्वेंशनल क्राउड इज, मान लीजिए यू आर टोल्ड कि इस टाइम मंदिर में या यहाँ इस जगह पे इस टाइम पे आरती होगी या इस टाइम पे कोई फेस्टिवल होगा, एंड पीपल कम एंड कॉन्ग्रीगेट. तो दैट इज अ कन्वेंशनल क्राउड जो कि किसी रूल से डायरेक्ट होता है. Then second type is friends mass society. So mass society is characterized by rationality, impersonal relation, extreme specialization of roles and loneliness of the individual. तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग voluntary association करते हैं, organizations करते हैं, आश्रम्स होता है, जो खुद को इन सब जगहों से relate कर पाते हैं, इन सब की membership लेते हैं, तो that is a mass society. तो यहाँ पे क्राउड कॉन्टैक्ट्स भी होता है, कभी कभी प्रोपेगेंडा भी होता है, एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. सो दिस इज नोन एज अ मास सोसाइटी. तो यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ इररेशनल रैशनल बिलीफ, कभी कभी सुपरस्टिशंस को भी वो लोग बिलीव करेंगे, कभी कभी इलैबोरेट रिचुअल्स को भी वो लोग प्रोपगेट करेंगे, और कभी कभी दे विल टॉक ऑफ वेरी गुड थिंग्स लाइक सेविंग नेचर, वर्किंग फॉर कल्चर, एक्सेट्रा. तो दिस इज व्हाट मास सोसाइटी इज. Then third is friends audience. तो audience क्या होता है? Audience is basically that crowd which assembles at one place और उनका एक mental unity होता है. तो एक होते हैं casual audience और एक होते हैं scheduled audience. तो अगर street quarrel हो रहा है और कुछ लोग जाके उसको खड़े होके देख रहे हैं, that is casual audience. लेकिन अगर किसी lecture में या फिर मान लीजिए कोई webinar, seminar,
सिनेमा हॉल या कुछ में अगर एक टाइम है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, एंड वहां आके ग्रुप बैठ के फिर जाते हैं, बट उनमें उनमें कुछ भी कॉमनैलिटी या सिमिलैरिटी नहीं होती. व्हेन यू आर सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल, जरूरी नहीं है दैट यू नो हु इज द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग विथ यू. ओके, जो कि ग्रुप में बेसिकली यू नो द ग्रुप मेंबर्स, वहां पे आप किसी को नहीं जानते हो, तो इट इज अ शेड्यूल्ड क्राउड. ओके, तो कभी कभी ऑडियंस सिचुएशन में भी इंटरेक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो ऑडियंस और स्पीकर के बीच में होता है, मतलब वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड देयर इज ऑडियंस हु आर लिसनिंग, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, मे बी दे आस्क क्वेश्चंस एंड दिस स्पीकर गिव्स आंसर एक्सेट्रा. और कभी कभी इट इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस देमसेल्व्स. वो क्यों होता है? टू नो मोर अबाउट फैक्ट्स एंड टू इंटरप्रेट थिंग्स. कभी कभी दे शेयर सम कॉमन इमोशंस, और मे बी कुछ ऐसी बात आ जाती है which by which they both can relate to each other. Okay, so this is what is between audience and speaker and between members of the audience themselves. Then next one, friends, is mob. A mob is what? Mob is a violent or a very ruthless crowd, आप जिसको बोलोगे, that is mob. So members of mob जो होते हैं उनकी similarity होती है feelings में, thoughts में, actions में. वो कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड से आए, लेकिन दीज आर द सिमिलैरिटीज दे हैव. लेकिन कभी कभी उनकी इमोशनैलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाती है, और इसीलिए वो एंगर, फियर, जॉय सब कुछ दिखाते हैं. एंड वो अनरीजनेबल होते हैं, इनटॉलरेंट होते हैं, एंड दे कैन बी वेरी वायलेंट. दे कैन इवन रिसोर्ट टू किलिंग पीपल, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, डिमिनिश्ड होती है, और सेंस ऑफ ऑटोनॉमी वगैरह भी वो भी बहुत कम हो जाती है. वॉट एवर द मॉब, मतलब वॉट एवर द मॉब के जो लीडर हैं, whoever is leading, वो अगर बोले कि आप ये करो, वो लोग कर देंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट. और यहाँ पे सजेशन और इमिटेशन, सिंपैथी, ये सब भी देखने को मिलता है इन अ मॉब. ओके, अभी मॉब क्या है? इट कैन बी ड्यू टू डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल जैसे हैं, जैसे उनका नेचर है, उसके वजह से भी हो सकता है, और सिचुएशन ही ऐसा होता है कि इट गिव्स राइज टू दिस मॉब बिहेवियर. ओके, तो मॉब बिहेवियर इज आल्सो ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड सोशल एज वेल एज इंडिविजुअल. एंड लास्ट में फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट फैशन. तो आप देखोगे कि जहाँ पे क्राउड बिहेवियर इन सब में भी होता है, क्राउड बिहेवियर फैशन में भी होता है. सो कुछ लोग कोई ट्रेंड फॉलो करने के लिए दे वेयर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ्स. आजकल आप देखोगे सोशल, नॉट सोशल, आप देखोगे ये जो रीसेलिंग ऐप जैसे हैं मीशो, अमेजोन, एंड नॉट अमेजोन, आई एम सो सॉरी, Misho and Glowroad, and then other apps like Myntra, Amazon, Flipkart. There's so much of fashion, so much of things to wear, things to use. So just to have a conformity, or let's say just to have a trend going on, many people follow. और वो लोग सेम ही चीज खरीदते हैं. अगर उन्होंने देखा ये चीज बहुत बार वो लोग मार्केट में कहीं पे देख रहे हैं, पीपल आर यूजिंग, तो दे विल थिंक यार ये भी एक फैशन है, वी शुड फॉलो इट. तो यहाँ पे फैशन फर्निशेस द डिजायर ऑफ कंफर्मिटी, सिक्योरिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी. यही मार्केट में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो इवन आई शुड यूज दिस. ओके, दैट इज डन व्हाई? बिकॉज दैट विल ऑल्सो मेक देम feel related to a particular group or to a particular activity that is going on in the society. So that also is a crowd behavior. Okay. So ठीक है friends, with this now we finish this chapter. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, please go through, and a very easy chapter. You should know the difference between crowd, mob, and casual crowd, scheduled crowd, etc. ये सब आपको बस थोड़ा जानना है. So ठीक है friends, with this we finish the chapter, and next we'll go for chapter number 4. Chapter number 4, cooperation, competition, and conflicts. Okay, thank you so much.